मैं ऑलरेडी हीलिंग के जर्नी में हूँ। हम्म हीलिंग दूसरों को भी मैं देता हूँ। बावजूद उसके देव सर ने जो जो चीज बताई ना, उसमें से मेरा काफी हीलिंग हो गए। तो ये हीलिंग होने से आई हैव चेंज एज ए बीइंग ना। इसमें पैशनप्रेन्योर में आने के बाद में स्लोली स्लोली वो जो मनी रिलेटेड जो बिलीव ब्लॉकेजेस है। थे या थिंकिंग बिलीफ जो थे, तो वो थोड़ी थोड़ी ब्रेक हो रही है मेरी। देवगढ़वी वाज टेलिंग अबाउट द क्रिएटिंग बिजनेस अराउंड योर पैशन। Passion, yes, that Yeah, got you. that That was got the you. yeah, that was the catching factor for me. Hello, Krishna, and welcome to Passionpreneurs Success Stories. We really love to have you today here for all our audience to listen to your some of the amazing success that you've got. So before we proceed, I would like you to introduce yourself to our audience, who you are, what you do. Over to you. Namaste. Namaste, Anju. Thank you for this opportunity. And my name is Krishna Koyende. By qualification, I am mechanical engineering postgraduate, done in 1990. So I work in engineering companies, different companies in India as well as in UAE for almost more than 30 years. And in year 2020 during Corona, my company terminated my job. That time my age was 55 years. So before I got out of the job, I was following my passion of healing people. Mhm. All kinds of diseases I used to heal. And then I intensified this healing journey in 2018. Hmm. So by the time I was out of the engineering job, I was having very good skill of, and especially I learned pranic healing. So I used that skill in 2020 Corona. I Mhm. helped so many people. So many then I don't counted that people, number of people. Awesome. And that was a great opportunity for service for me also, because my daughter is also MD in Ayurveda. So she will help people inside the hospital and I will help people from outside. That way we work, what you call, like a harmony. And Harmony. several patients we took out, yeah. And then from that incident after Corona, I was using this pranic healing as a passion and helping people, but I was not getting money also. Then I thought, let us prepare one NGO Hmm. and help people. But then I have contacted 2, 3 people. I worked with them also, but somehow that NGO was also not getting created. Hmm. Then I thought there is something bigger than this for my life. And that time, Dev sir ka jo video hai, that video was popping up on the YouTube because I was not a person of social media. I had Right. never account of Facebook up Acha. to 2020 Corona. Wow. Because of the Corona, I have to help people in the distant healing. Then I Yeah. created my Facebook account first time in 2020. Then Hmm. YouTube also I never used to see. But the Wow. 2020 I started seeing YouTube. Then 2021, so many times I saw the video of Dev Garvi popping up. I ignored. 2022 also I was seeing this video. I ignored it. Then 2023, I got some courage, strength. Let us see what it. After that NGO plan failed, means NGO is also not getting started. So I thought something more bigger than this should be done. So I clicked that video Wow. because Dev Gadvi was telling about the creating business around your passion. Passion. Yes, that Yeah, got you. that That was got the you. that was the catching factor for me. Yes. Not like making crores of rupees and all, because in 30 years of my as an employee journey, because I work in foreign countries also, so
so many crores of property, crores of Yeah. money also in the account. Yes, But I mean, that was not the that thing pull was for you. missing. Yes, that Yeah, was not that the was, pull, but yeah. it was like, So, how can I create my business? yes, My passion? and it was not giving me the fulfilling thing. वो Hmm. fulfilling जैसा नहीं लग रहा था. सब कुछ है, सब कुछ तो है बेटा मेरे है, पास, पर हाँ, what बेटा है, is बेटी missing? है, घर है, कुछ तो मिसिंग रह रहा था. क्या मिसिंग है, और राइट? मिसिंग क्या था, तो वो था कि मैंने 1990 में इंजीनियरिंग पास किया, तभी मैं एक बिजनेस करना के लिए कोशिश किया. मेरा पूरा अमाउंट लगाया, पिताजी से भी थोड़ा लिया. I took borrowed from father also, and that business failed. Failed. That time 1990 my father told me, बेटा हम लोग के फैमिली में बिजनेस नहीं करते, मैंने तुमको पहले भी बोला था कि मत करना. उसके तुमने तेरा पैसा भी गवाया, मेरा भी थोड़ा बहुत गया पैसा. देन आई थॉट, पिताजी से पूछा कि क्यों ऐसा है, तो बोलते उनके पिताजी ने उनको कहा है My God. So this is कि coming from हमारे, generation to हाँ generation. हाँ, जनरेशन, बिजनेस मत करो, तुम्हारे बस मत की करो, बात नहीं नहीं है. करना, नहीं करना है. तो वो भी मैंने पूछा कि आपके पिताजी ने आपको क्यों बोला ऐसे, तो वो बोलते उनके पिताजी ने उनको बोला ऐसे. फिर वो भी क्यों बोला ऐसे, वो मैंने बहुत, मतलब उस टाइम में तो Deep में इंजीनियरिंग गया. डिग्री किया हुआ था ना, तो काफी सारा एनर्जी भी था ना, तो फेल होने के बाद तो डिगिंग करेंगे ही ना, तो Right. काफी डिगिंग किया मैंने उस टाइम. So he told that my father's grandfather was having a very big business, and that what you call, वो पूरी तरह से डूब गया because of the hurricane. जो चक्री आते हैं ना, जो वो Right. चक्री वाला कुछ आया, और उनका शिपिंग का बिजनेस. इट वाज शिपिंग द कार्गो, शिप के ऊपर से कार्गो ट्रांसपोर्ट कर, बहुत बड़ा बिजनेस था उस टाइम में, समझो लाखों का बिजनेस था. Correct. It was in 1940s somewhere. My God. तो That would have been huge. वो पूरा, हाँ, वो पूरा जीरो हो गया. वो ब्रिटिश के टाइम में था समझ, तो वो जीरो हो गया. तो उस टाइम से वो सिग्नल दिया गया कि हम लोग Business बिजनेस अभी नहीं कभी भी नहीं करिए. करेंगे, नहीं करेंगे. Got वो it. बात Thank you. तो चल रहा था. फिर then somehow that is why even after having money also, I am having passion also, I was trying to create NGO, not a business. Correct. लेकिन वो एनजीओ भी फेल हो गया मेरा. Yeah, because even फेल that हो गया has, एनजीओ. see, because एनजीओ कुछ भी रन करने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए ना. चाहिए. Yeah, so somewhere I think कुछ missing piece था. So if I have to ask you, Krishna, you know, like already you kind of partially answered something that maybe, you know, I'm also wanting you to answer for our audience to understand. So what was your like real challenge or problem that you were facing before joining Passionpreneur Mentorship? So of course, one thing is कि आपको दिखा एनजीओ जो है वो नहीं चला, you know, so उससे पिछला तो जो चल रहा था वो चल ही रहा था, but then you actually thought my NGO, let me start for the impact, for the fulfillment, but that also did not work. Whereas money was not the motto there, but still it did not work. What was the real challenge there? What do you think, you know, that you realized that before Passionpreneur Mentorship, that was the major challenge that you found yourself in? मेजर चैलेंज जो है कि माइंडसेट जो बोल सकते हैं हम लोग हैं कि, और जो लिमिटिंग बिलीफ जो था कि हम बिजनेस नहीं कर सकते या लोगों को कुछ देकर उससे इनकम नहीं जनरेट करना, हमने सिर्फ नौकरी करना. तो ये तो काफी स्ट्रांगली मेरे पिताजी ने मुझे इतना तक स्ट्रांगली किया था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही लेने के लिए कहा इंजीनियरिंग डिग्री के बाद. और मैंने बहुत कोशिश करके वो गवर्नमेंट जॉब ही दिया. वो जॉब छोड़ के जब फॉरेन में जाना था, उस टाइम में भी पिताजी ने कहा कि नहीं गवर्नमेंट जॉब छोड़ना नहीं, वो नौकरी चली जाएगी तो पैसा किधर से आएगा. मतलब वो जो पैसा किधर से आएगा, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, फिर हम बिजनेस नहीं कर सकते. इस टाइप के जो थॉट फॉर्म्स है ना, उन्होंने मुझे बहुत तरीके से घेरा हुआ था. फिर उससे मैं बाहर नहीं निकल आ रहा था. वो जो थिंकिंग पैटर्न जिसको बोल सकते हैं हम लोग, वो थॉट फॉर्म को ब्रेक करना जरूरी था. मतलब आपके माइंड में वो सारी चीजें एच हो गई थी
कि हाँ, यही हाँ, सच है, यही रियलिटी है, और you were exactly. totally surrounded by all your limiting By beliefs. all, This was the yeah, biggest challenge that you faced, biggest not challenge. just in the Yeah, job, and overall आपका पूरा life जो है, yes, that was yes, covered in this limiting belief that you yes, cannot do business, and obviously that led to you not being able to run the NGO and other things, of course, right? yes, yes, yes. Okay. So what really motivated you to join Passionpreneur Mentorship, Krishna? मेरा main motivation was I could build a business around my passion. Hmm. क्योंकि इंजीनियरिंग जो फील्ड था ना, वो मुझे कभी भी, मैंने इंजीनियरिंग में तो काम तो किया, पैसा भी कमाया, लेकिन इंजीनियरिंग फील्ड में मुझे कभी वो तो जिसको हम लोग आनंद बोलते हैं ना, वो नहीं मिला। Hmm. इसके लिए मैं आपको और एक फैक्ट बता दूं, मैं जिधर जिधर भी इंजीनियरिंग में काम किया ना, इंडिया में भी किया, इंडिया के बाहर भी किया, वो इवनिंग हो जाएगा, जॉब छूट जाएगा, मतलब जॉब का टाइम खत्म हो जाएगा, बाद में मैं वो सोशल ग्रुप्स में जाएगा, आई Hmm. विल गो इनटू द पीपल। People. अगर लेबर की कॉलोनी है तो लेबर के कॉलोनी में चला जाऊंगा, मतलब Hmm. मेरे लेवल से नीचे के लेवल के जो भी लोग होंगे ना, Hmm. उनके कॉलोनीज में, उनके जो रेसिडेंस में, उनको जाके मिलना, मेरा इवनिंग ऐसे ही चला जाता हर दिन। Hmm. मतलब मेजर टाइम आई यूज टू स्पेंड विद सोशलाइजिंग, और सोशली लोगों के साथ में Connect ये होना. करना, कंपैशन, हाँ कंपैशन जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू कनेक्ट होना लोगों के साथ। Got it. Got it. वो हीलिंग का जर्नी मेरा तभी से चल रहा था। Hmm. इंजीनियरिंग में मुझे कभी भी आनंद नहीं मिलता था, लेकिन पैसा बहुत मिलता है ना। Hmm. Correct. और मेरा जॉब था वो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के Oil फील्ड and में, वहां gas. तो और भी ज्यादा पैसा मिलता था। तो Correct. पैसा मिलता है इसके लिए बस दिन गुजारते रहता था, Got it. लेकिन 50% ऑफ द टाइम मैं सोशली लोगों के साथ कनेक्ट करने में बिताता था। मतलब Got दैट it. वाज आपका माय, आपका heart जो था, that was very much यस 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 connected यस, with the people, you know. विद द पीपल, हाँ विद द पीपल। Hmm. Got it. तो जस्ट बिकॉज ऑफ द लिमिटिंग बिलीफ, मतलब कि अगर ये छोड़ दूं इंजीनियरिंग अभी बीच में, तो पैसा किधर से आएगा? तो लोगों से मिलना होता है, लोगों से सब, लेकिन पैसा किधर से आएगा? हाउ मनी विल कम? Correct. ये थॉट फॉर्म ने बहुत टाइम तक मुझे घेरा है। Got it. Got it. तो तो फिर वो ऐसा ब्रेक क्या? करने के लिए ये हाँ. मोटिवेट हुआ। हाँ. तो ओके. देव तो सर का जो मतलब वीडियो के अंदर जो बोलते हैं ना, वो पैशन के साथ आप बिजनेस कर सकते हैं, तो तो बिजनेस आपको में तो वो पैसा चीज भी क्लिक कमा करी सकते कि हैं। यस, कि वो चीज मैं अपना बिजनेस भी बिल्ड करूंगा, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, दो करूंगा। अलग अलग रास्ते हैं। एक तरफ वर्क यस है और एक तरफ मेरा सोशल, जो मैं रियली दिल से चाहता हूँ लोगों के साथ जुड़ना, एंड यू नो उनकी सेवा यस करना या उनको इम्पैक्ट करना। बट समवेयर वो एक मिडिल पाथ नहीं दिख रहा था। बट व्हेन यू सॉ द वीडियो एंड यू फेल्ट कि अरे, मैं पैशनेट जिस चीज के लिए हूँ, क्या मैं उसके अराउंड में अपना बिजनेस भी बना सकता हूँ? वाओ. So is that how you actually landed in Passionpreneur, right? यस, Yes. करेक्ट So, करेक्ट करेक्ट। so amazing. I mean, really beautiful to know, and thank you for sharing, you know, authentically with us, you know, how things shaped up, you know, your life. So, what was the specific part of our program that you found like the most beneficial, and why? मतलब जैसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं हमारे प्रोग्राम में, तो ऐसा क्या उसमें एक पार्ट आपको लगा कि अरे ये मेरे लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है, और ऐसा क्यों लगा आपको? उसमें तो काफी सारे चीजें हैं, दो तीन तो मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा। देव सर के जो वीडियोज है, रिकॉर्डेड वीडियोज, उसमें वो माइंडसेट की बात करते हैं काफी बार। तो वो माइंडसेट का जो ये, वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, और उससे मुझे काफी बेनिफिट हुआ कि मैंने ऑलमोस्ट 30 इयर्स तक तो एम्प्लॉय का माइंडसेट से काम किया। तो जो बताया जाएगा वो करना है, और मैं काफी बार बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड टाइटल भी मिला। लिया हुआ था। हाँ, लिया हुआ था। तो मतलब यस सर बोलना और यस सर बोल के वो सब चीज कर देना है, इतना ही चल रहा है। तो जब हम लोगों को सर्व करने के लिए जाएंगे, तो क्या माइंडसेट से सर्व करना है, वो जो बात देव सर बीच बीच में जो रिकॉर्डेड वीडियो में बोलते और लाइव सेशंस में भी बोलते, वो काफी मुझे मतलब काफी बेनिफिशियल लगा, और काफी यूज भी हुआ। फिर एम्प्टीइंग द कप, वो भी मतलब पुराना जो है
अनलर्न बस करना, बार बार हाँ अनलर्न करना। मैं इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ हूँ या मैं इंजीनियरिंग में इतना सारा काम किया हूँ तो मुझे सब कुछ आता है। आई नो इट तो ऑलरेडी। हाँ आई नो इट। वो 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 जो बात था वो मेरे अंदर ऐसे एक थीन लाइन जैसा था, मतलब आई वांटेड टू लर्न न्यू थिंग्स, लेकिन वो किसी तरह से लर्निंग देने वाले भी कोई सामने चाहिए ना। वो करेक्ट, देव सर के अंदर मुझे दिखाई दिया कि दिस करेक्ट, पर्सन विल गिव मी समथिंग लर्निंग सो दैट आई कैन मूव दिस लाइन। वो ब्यूटिफुल। लाइन मूव नहीं हो रही थी, वो आप वो वो मिल गया इसमें। तो आप जिसे और कहते फिर हैं कि एक हम्बल स्टूडेंट बने, एंड यस you यस like really opened up कि यस I am ready to unlearn, I'm ready to empty my cup, यस and I'm ready to adapt whatever I am going to get, यस right? यस यस। और बार बार जो देव सर जो बोलते हैं ना, जो मनी इज स्पिरिचुअल, Yes. तो काफी बार ये बात को कॉन्ट्राडिक्ट होते रहता था। तो मतलब मनी जो है वो मनी अर्न क्यों करना, ज्यादा अर्न क्यों करना, मनी से मतलब पैसे की वजह से बहुत सारी समस्या आ जाती है। यही बात Money belief. पिताजी ने भी सिखाया था, हाँ वो भी हाँ, बात पिताजी ने सिखाया था। right. वो बस अपना जितना चलता है उतना ही पैसा कमाने का, उससे ज्यादा नहीं कमाने का। जितनी चादर है उतने ही पैर पसारो। हाँ 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 हाँ। ये इसी वजह से Yes. काफी चीजें जो है जिंदगी में मैंने उसको क्या बोल सकते हैं, उस माइंडसेट से पैसा कमाया लेकिन कभी एंजॉय भी नहीं किया ज्यादा, वो भी बोल सकते हैं हम। Hmm. मतलब फ्लाइट से जाना है तो इकोनॉमिक क्लास से जाना है, हाँ, वो अगर बस से जाना है तो स्टेट ट्रांसपोर्ट के बस से जाना है। hmm. शादी के बाद भी मेरे वाइफ काफी बार मुझे बोलती थी, आप स्टेट ट्रांसपोर्ट बस से क्यों जाते हैं? Hmm. क्योंकि माइंडसेट, उसको माइंडसेट। हाँ वो माइंड से, वो हाँ, माइंड सेट, वो माइंड सेट की वजह, पैसे है मतलब अमाउंट इज देयर, आई कैन हाँ, ट्रेवल बाय ऐसा नहीं है कि लग्जरी आप बस अफोर्ड आल्सो। नहीं कर नो सकते। नो नो नो, Yeah, अफोर्ड भी नहीं, वो अफोर्ड। correct. It's the mindset, तो उन आपका हाँ वो पैसों के साथ एक अलग ही रिश्ता बन चुका था. Your relationship was यस यस completely यस यस very, यस यस like it was influenced from your forefathers, all of that was coming यस यस from यस your यस। past वो actually. ब्रेक That करने में देव सर के काफी सारे लेक्चर्स में, रिकॉर्डेड भी और लाइव लेक्चर्स में भी, वो चीज को ब्रेक कर पाया। दिस awesome. इज रियली वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी। This is amazing. I mean, really, I हाँ mean, this people actually यस die without even knowing that they have this यस limiting belief, that has यस been यस shaping यस their life in a very different way, not letting them live their life fully, enjoying their यस life fully. So, यस आपने जैसे कहा पैसा यस का issue नहीं था, but it was, so much in the mind that you were not ready to यस utilize on your own self and, यस your family. यस And I think that was यस one of the biggest breakthrough यस that you got, I'm यस sure. So, यस any यस, ये मेरे लिए specific बिगेस्ट bang ब्रेक था। apart from this did you achieve as a result? जैसे ये तो एक था ही बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू, यस यस पर इसके अलावा यस और यस कुछ आपके स्पेशल ऐसे है कुछ एग्जाम्पल हैं जो यस बैंग्स आपने कुछ शेयर यस करेंगे? यस You यस like यस। to ये share? पूरा जर्नी आप अगर हम देखेंगे तो माय जर्नी इन पैशन ट्रेनर स्टार्टेड इन मार्च 2023। Mm. First passion trainer master class, 3 days master class I attended in March Yes, yes. 2023. Then I entered into passion trainer uh, mastermind. Yeah. So जब when I was paying the fees for mastermind, वो जैसे कि अभी हम लोग तो शादी करके तो काफी साल गुजर गए ना, तो मेरा जो थिंकिंग थोड़ा बहुत वाइफ को भी इन्फ्लुएंस हुआ है, तो वो भी बोलते कि आप तो अभी जॉब से भी तो बाहर निकल गए, अभी इतना सारा फीस क्यों पे कर रहे हैं, Hmm. इसमें क्या ऐसे इतना सीखने जैसा रहेगा, Hmm. आप तो ऑलरेडी इतने सब सारे सीख चुके हुए, Correct. तो इतना पेमेंट क्यों करना है। अभी टाइम भी ऐसा था कि मैं मतलब वाइफ को छुपा के नहीं कर सकता हूँ, ऐसे लेवल पर हम लोग चले गए हैं। अभी Of course. बच्चे बड़े हो गए, अभी क्या छिपाना है उनसे। Correct. तो मैंने बोला कि नहीं नहीं, मुझे तो ये करना है, मुझे ये बिजनेस का जो मैं स्टक हो चुका हूँ कि बिजनेस हम नहीं कर सकते, तो ये हम्म। पर्सन मुझे उसमें से निकाल सकता है, ये मुझे कॉन्फिडेंस लग रहा है, तो मुझे ये ये तोड़ना है करना जो है मैंने करना ये है। बाउंड्री हाँ बना. मुझे ये जो बिलीफ है ये मुझे तोड़ना है। और हम्म. उस समय तो मान लीजिए पिताजी के सामने बोलने के लिए मेरे पास था भी नहीं कुछ, कि एक्स्ट्रा जो भी पैसा था वो तो मैंने ऑलरेडी गवा दिया, अभी करेक्ट. तो मेरे पास पैसे है,
तो बोलते नहीं नहीं इतना पैसा बहुत ज्यादा होता है। तो मैंने बोला फिर तू क्या चाहते है? नहीं बोलते ये सही नहीं है, आप इतना ज्यादा पैसा ही करेंगे। मैं बोला ठीक है तो ऐसा करना, तुझे मैं एक फॉरेन ट्रिप के लिए पैसा दे देता हूँ। तुझे वाओ, अलग से पैसा दे देता हूँ। ये तो सोचो कि वो भी मैं, दिस इज हाँ व्हाट इट इज। ओह नाइस। ये, लेकिन मुझे ये करना ही करना है। जितना वाओ। पैसा मैं इसमें डालने वाला हूँ उतना चाहे तो तुझे दे देता हूँ, तू फॉरेन ट्रिप एक कर लेना। तो फॉरेन ट्रिप की भी किधर करना था, हमारा बेटा जो है वो मलेशिया में पढ़ाई कर रहा था और उसमें उसको जॉब भी उधर ही मलेशिया में मिल गया। राइट। He has done, my son has done PhD in environmental engineering. So नाइस। he was having job also in Malaysia in the same university, University of Nottingham. मैं बोला यस। तू उसको मिल के आ जाना, उधर से मलेशिया सिंगापुर थोड़ा घूम के आ जाना, ये ले लेना 2.5 लाख रुपए घूम के आ जाना, मुझे ये करने देना। तो वो पैसा दिया, वो गई वीजा, बेटे के पास से वीजा मंगवाया, वो सब घूम के वगैरह आ गई। तो मैंने तो ये ज्वाइन कर लिया, पैसा पेमेंट करके पास्टन ट्रेनर मास्टरमाइंड ज्वाइन कर लिया। आई स्टार्टेड मास्टरमाइंड जर्नी। देन अगस्त में जब भी वो मैंने 2 टिकट निकाले थे पैशन ट्रेनर कनेक्ट प्रोग्राम के, जो जी। नवी मुंबई में यस हुआ ना, वो यस 3 डेज इवेंट। तो वो मैं हस्बैंड और वाइफ हम दोनों अटेंड किए। वो अटेंड करने के बाद में वहां पर जब मेरे वाइफ ने देव सर को सुना डायरेक्टली लाइव में, उस टाइम में बोलते कि हाँ आपने सही चुनाव किया है। आपने सही पर्सन को ढूंढा है। तो मैं बोला मैंने ढूंढा नहीं है, वो पर्सन मेरे सामने बार बार आया तो मैंने Right. कुछ No, करेज but दिखा when के the वो student click is किया। ready, हाँ master हाँ, तो appears, right? So it ये happened like that for मास्टर you. अपियर्स, हाँ ये जो प्रोवर्ब है ना, ये काफी बार मैंने सुना है और मैंने एक्सपीरियंस भी किया, क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू 2 स्पिरिचुअल टीचर्स। Wow. वो भी स्पिरिचुअल टीचर्स जो मुझे मेरे लाइफ में जब भी आए, व्हेन आई वाज रेडी। Ready. Yes. हाँ, Correct. वो मैंने एक्सपीरियंस किया था, जो स्पिरिचुअल जर्नी में वो दोनों टीचर जो है मेरे लिए जो गुरु के समान समझ लीजिए, वो उसी वक्त आए जब भी मेरा कुछ रेडीनेस था। तो ऐसे ही देव सर भी उसी टाइम में आया कि जब भी मैं कुछ रेडी था कि ये बिलीफ जो है और ये जो सब ब्लॉकेजेस रिलेटेड विथ मनी शुड बी ब्रोकन डाउन इन दिस लाइफ टाइम ओनली, तभी आए। तो वो Yes. अटेंड करने के बाद में मेरे वाइफ बोलती नहीं नहीं अभी तो हमको बिजनेस फिर आप रजिस्टर करो, ये सिर्फ ऐसा सिर्फ बिजनेस करना डेली बोलने से नहीं चलेगा, रजिस्टर करो। करो अभी बस तुरंत वो अगस्त खत्म हो गया, मैंने रजिस्टर कर लिया। मैं बोला रजिस्टर करने तो तू चाहिए पार्टनरशिप में? बोलते हाँ मैं पार्टनर हूँ, तुम्हारे ऑलरेडी पार्टनर तो हूँ। मैं बोला ये कागज के ऊपर पार्टनरशिप के साइन कर लेना। तो उसने साइन कर लिया और हमने सितंबर 23 में रजिस्टर कर लिया है फिर हमारा बिजनेस इष्टाव्रत हीलिंग्स करके हमने हमारा बिजनेस रजिस्टर कर This लिया। is, I think, the तो biggest ये सबसे बड़ा bank. बैंक है मेरे लाइफ के लिए। बहुत मेरा लाइफ जबरदस्त। का ये सबसे बड़ा बैंक है कि मैं और वाइफ हम दोनों फिर एक ही लाइन में सोचने लगे कि बिजनेस करेंगे और लोगों को सेवा भी करेंगे, क्योंकि हम लोग व्हाट आई एम डूइंग इज हीलिंग फॉर द टीनेजर्स। दैट मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड, एसएससी, 12th स्टैंडर्ड, फिर जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दे रहे हैं उनके लिए हीलिंग करते हैं हम लोग। लाइक स्पेशली ज्यादा स्ट्रेस होता है वो एग्जाम्स के लिए, अप टू बैचलर डिग्री के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम हीलिंग करते हैं। That's your domain. तो वो हमारा निश है और अभी दिस वर्क वी आर डूइंग बोथ, मी ऑल्सो एंड माई वाइफ ऑल्सो। तो ये मेरे लिए एक दूसरा बैंक है। मेरा खुद का बिलीफ तो टूटा और मेरा वाइफ के साथ का जो रिलेशन पर्सनल तो लाइफ में था ही ठीक, लेकिन वो बिजनेस में भी आ गई और उसको समझ में आया कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। पहले वो क्या समझ रही थी कि अभी तो 55 साल की उम्र हो गई, अभी तो और भी 2 साल चले गए, 57 हो गए, ये 58 के एज में आपको ये सब क्या करना है? पैसा तो है तो जिंदगी आगे आराम चलने से चल रही है लाइफ, आराम से चल रही है। बेटी की शादी हो गई, बेटा को जॉब भी मिल गया उधर मलेशिया में, तो कुछ न कुछ तो वो भी भेजेगा पैसा, हम लोग ने कमाया हुआ वो भी है, प्रॉपर्टी है उसमें से भी आएगा। फिर क्यों इतनी, मतलब क्यों इतना सारा तुम एक्साइट हो? अभी वो भी खुद जब एक्साइट हो गई ना
तभी उसको पता चला कि अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो अब करना समझ चाहिए। में आया। हाँ, अब समझ में आया कि ये तो करना चाहिए। Beautiful, beautiful, amazing, तो Krishna. I'm मैटर really मतलब हमारे loving लाइफ this. में ना, हमारे लाइफ में मैटर पैसा ज्यादा कमाने का मैटर नहीं था, कुछ करना सेवा के जैसे, और लोगों को जीवन को बदलाव लाना। बहुत बढ़िया। तो बाद में जब ये जर्नी हमने स्टार्ट किया तो 23 में, हाँ 23 में ही 2 पेरेंट्स के केसेस मिले मुझे। उनके बच्चे, एक के बच्चे ने तो डायरेक्ट बोल दिया माँ को कि मैं तो सुसाइड करूंगा। तो मैंने पूछा सुसाइड करूंगा ऐसा क्यों बोला है तुमको, मतलब माँ को बोलता है डायरेक्ट। तो बोलता है वो फेल हो गया सेकंड सेमिस्टर में इंजीनियरिंग। तो फेल होने जैसी तो बात क्या है सुसाइड के साथ कनेक्टेड। करेक्ट। बाद में मैंने ज्यादा जब भी उस माँ के साथ बात किया, बोलता है उसका एक लड़की के साथ प्यार था, वो फेल हो गया तो वो लड़की उसको छोड़ के चली गई, इसके लिए वो सुसाइड करने के लिए सोचता है। बोला अच्छा हो गया आपको, कम से कम आप माँ के साथ उसने बोला ये। फिर मैंने वो उसको हीलिंग किया, तो उसमें से वो बाहर आया, और बाद में जो नेक्स्ट एग्जाम आई उसके अंदर वो पास भी हो। Wow, that's amazing. तो तो ये जब सारी आप, जो चीजें हाँ, ये किधर से मिलेंगी। seriously, thank you so much for sharing, हाँ because you know, जिस हाँ, तरीके से it, as we are speaking, you know, like जिस तरीके से ये आप एक हमेशा से एक ऐसी सोल रहे हैं where you wanted to connect with people, make the या change, you know, you always wanted to do that and you were doing that. यस 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 So यस how does that like make you feel? आपको प्रोफेशनली या पर्सनली, ऑफ कोर्स, जैसे आपने इतने बड़े बड़े ब्रेक थ्रूज बताए, आपका you and your wife getting aligned onto one mission, वन that वन itself is a मिशन, very big thing. यस It यस is not just यस, like वेरी your बिग, own करेक्ट, vision now. It is a collective यस mission where यस, both of you are like really looking to create an impact. तो आपको यस यस। personally and professionally, how do you feel when you are making this kind of beautiful impact in the world? बहुत अच्छा लगता है, और You अच्छा feel इसके लिए लगता है कि satisfied? लोगों को, हाँ सेटिस्फाइड लगता है कि, और सेटिस्फाइड इसलिए लगता है कि मेरी लाइफ भी तो एक्चुअली जो टीनेज के टाइम में एक अलग लेवल के चैलेंजेस में थी, और अभी के जो टीनेजर्स है उनकी लाइफ एक अलग लेवल के चैलेंजेस में है। करेक्ट। तो उस टाइम में समझो मैंने काफी सारा स्ट्रगल किया, वो स्ट्रगल था सिर्फ पैसे के लिए, करेक्ट। कि मतलब एजुकेशन के पैसा लिए कमाना पैसा है, नहीं था। नौकरी में हाँ सेट पैसा हो जाना कमाना है है, बस। नौकरी में सेट होना है बस। राइट तो राइट। वो एक अलग टाइप का चैलेंज था उस टाइम में। करेक्ट। और अभी के टीनेजर्स के सामने और टाइप के चैलेंजेस है, सोशल मीडिया की वजह से एडिक्शन हो गया सोशल मीडिया का, वो भी है, फिर इंस्टेंट पीयर ग्रेटिफिकेशन प्रेशर चाहिए। है। हाँ यस। सिंपल सिंपल चीज, अभी वो एक लड़की ने उसको समझो फेल होने के बाद छोड़ दिया, तो वो सुसाइड करने के लिए सोच रहा है, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। करेक्ट करेक्ट। मतलब अभी के टीनेजर्स के सामने है ना काफी चैलेंज है, तो उस चैलेंज में अगर मैं उनको कुछ हेल्प कर सकूं, हम दोनों मिलके, हमारे बच्चे का तो अच्छा भविष्य रहा। मतलब मेरा बेटी ने एमडी इन आयुर्वेदा किया, उसका अच्छा सारा ये रहा। बेटे ने मेरा पीएचडी इंजीनियरिंग एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग किया, उसका भी अच्छा रहा। तो अभी आने वाला जो जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन को भी कुछ अगर हम हेल्प कर पाए इसी लाइफ टाइम में, तो दैट विल बी ए ग्रेट थिंग इम्पैक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो मेरा बेटा भी जो सोचता है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ही हैज टेकन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट बिकॉज ऑफ द कार्बन फुटप्रिंट। हाँ कार्बन फुटप्रिंट जो अभी ज्यादा हो गई है, तो उसके ऊपर उसने थिंकिंग करके वो उसके ऊपर रिसर्च करके उसने कुछ आगे सब किया है। तो 2 साल अभी जॉब करने के बाद में, जब मैं ये पैशन ट्रेनर का भी मेरा जो जर्नी हो रहा है, तो जैसे मेरा वाइफ के साथ मेरा रिश्ता हो, वैसे तीसरा बैंक जो अगर बोलेंगे तो वो है कि उसने अभी 2 साल एम्प्लॉय जैसे काम करने के बाद में बोलता है, पापा अभी ये एम्प्लॉय का जैसा काम करना ठीक नहीं है, मैं मेरा कुछ बिजनेस करना चाहता हूँ मलेशिया के अंदर ही। मैं बोला भाई ठीक है, तुम्हारा मर्जी, तू जो कमाया है 2 साल का आपके थ्रू उसको हाँ with उसको you ये now, बोला। every family member is getting also transformed, and then they are also thinking ट्रांसफॉर्मेशन हो big. रहा है, They are also thinking big, थिंकिंग। अभी You, हिज एज इज 28 ईयर्स, तो 28 ईयर्स में और सिर्फ 2 ईयर्स का एम्प्लॉय स्टेटस में वो इज थिंकिंग टू मेक मोर इम्पैक्ट एंड बिजनेस ऑल्सो। तो ये भी मेरे लिए तीसरा एक बैंक है।
after This my is wife amazing. relation, this is Amazing. another bank for me. तो Amazing. You know, जाएगा like और 28 30 एज में, और years उसको मैं, हाँ, आपको लग गए कुछ यस चीजों यस, को लेकिन अल्टर बेटे करने को के उतने नहीं लिए, लगे। एंड हाँ, आप ही की वजह से आपने जो एक्शन लिया, यस बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ दिस यस 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 you know, now your whole यस, family is so beautifully aligned, and you know, they understand that if we are यस here on this planet, we have to do यस, something टू beautiful मेक and द not just डिफरेंस, restrict यस ourselves. Very good. यस So, यस you know, यस। what was the biggest unexpected benefit? You know, of course, ये दो चीजें तो मुझे पता चल गई आपकी। ये हाँ अनएक्सपेक्टेड था, आपने सोचा भी नहीं था कि हाँ आपकी वाइफ भी बिजनेस हाँ ज्वाइन करेगी हाँ और बेटा भी इस हाँ, तरह से, you know, बेटा भी, इन्फ्लुएंस होकर के, you know, यस he will also start यस thinking like an entrepreneur, जो यस जनरेशन यस, से चला आ रहा था आपके दादाजी से करेक्ट करेक्ट, आप तक, राइट, आपके फादर, यू नो, लाइक सबने बोला था नहीं नहीं बिजनेस नहीं यस, करना। इमेजिन नहीं आपका करना, बेटा आज उस प्लेस में है कि 2 साल के अंदर ही सेज कि पापा आई वांट टू डू समथिंग, एंड यू आर एनकरेजिंग हिम, राइट? सो दिस यस इज यस लाइक यस, रियली, सपोर्टिंग हिम, दिस इज ब्यूटिफुल, आई एम श्योर अ सरप्राइज फॉर यू, इजंट इट? जो आपने यस नहीं यस, सोचा था सरप्राइज है, कि पैशनप्रेन्योर यस जर्नी यस, के थ्रू आपको यह हासिल होगा। इतना सारा होगा, हाँ, यस, करेक्ट, दैट्स अमेजिंग। करेक्ट। और मैं, आई ज्वाइन पैशन प्रेन्योर जर्नी फॉर माई सेल्फ, इतना स्वार्थी समझ लीजिए चाहिए तो, क्योंकि वो होने के लिए मतलब मेरे वाइफ को पैसे भी दिया, तो जाओ घूम के आ जाओ, जाओ। तुम जाओ एंजॉय करो, मुझे ये करने दो। लेकिन जब रिटर्न होने के बाद वो, Amazing, amazing. So तो really, आफ्टर दिस so ऑल्सो, happy to hear. और भी अगर आप जो पूछ रहे हैं ना कि इससे भी और कुछ हाँ, बैंक ऐसे कुछ या और सरप्राइज कुछ आपको लगा हो कि यार मैंने अनएक्सपेक्टेड, हाँ, मैंने इसके लिए तो ज्वाइन नहीं किया था, मैंने सोचा था कि मैं यस अपना बिजनेस कुछ कर लूंगा पैशन के अराउंड, बट आई नेवर यस, थॉट दैट मुझे ये भी चीज मिल जाएगी। ऐसा कुछ हुआ क्या आपके साथ में? तो अभी ये दो दो चीजों के अलावा और भी एक चीज हुई, वो कि देव सर के वीडियो में या लाइव लेक्चर्स में भी हमेशा वो बोलते हैं कि यू गेट व्हाट यू आर बीइंग, करेक्ट, मतलब आप जो बनेंगे उस तरह से चीजें आपके पास आएगी। आएंगी। तो जब बिजनेस का बारे में भी सोचा, और जब इम्पैक्ट भी ज्यादा टीनेजर्स के लिए करना है और पेरेंट्स के लिए करना है, तो दो चीजें सरप्राइजिंगली हो गई। सबसे पहला सरप्राइजिंग हो गया तो वो बुक लिखने वाला बात, मुझे वो कभी भी थॉट नहीं आया था, नहीं, कुछ भी नहीं सोचा था कि बुक में लिखूंगा या कौन से सब्जेक्ट पे लिखूंगा, क्यों लिखूंगा, ऐसा कभी भी नहीं सोचा था। आफ्टर कोरोना मेरे पास तो काफी टाइम था, 2021 में मेरे पास टाइम था, वो सब एनजीओ के अंदर ही मैंने लगा दिया सब, जिससे कुछ ज्यादा आउटपुट नहीं आया। तो इधर पैशन प्रेनर में जब भी देव सर बोलते हैं कि इम्पैक्ट करना है या कुछ लेगेसी क्रिएट करना है, तब जाके मैंने सोचा और देखा कि मेरे पास 30 इयर्स का पेरेंटिंग का एक्सपीरियंस है, जो हम दोनों ने जो एक्सपीरियंस किया है, मेरे वाइफ ने और मैंने, वो काफी यूनिक एक्सपीरियंस है। राइट, बच्चे का जो बड़ा होते हुए उनको जो ग्रेटिट्यूड की जो हम ये दिया, एजुकेशन दिया बेटे को, बेटी को। और मेरे लाइफ में तो मेरा बेटा मेरे साथ में यूएई में रहा काफी समय तक, मतलब बड़े होने के बाद में बेटी को मेडिकल में जाना था, इसलिए मैंने वाइफ को और बेटी को इंडिया में भेज दिया, लेकिन बेटे को मेरे साथ रखा। मैं बोला इसको मेरे साथ रहने दो, मैं उसको ट्रेन करना चाहता हूँ, तो उसको मेरे साथ रख के मैंने उसको कुछ ट्रेनिंग दिया समझ। तो ये जर्नी के ऊपर बुक लिखा जाए तो बहुत बढ़िया, तो फिर वो बुक लिखना मैंने शुरू किया, जो पैशन प्रेनर के अंदर जो इंस्पायरेशन देते हैं ना, वो चैलेंज में बुक लिखना भी शुरू किया। So when is your book coming? बना रेडी है, अभी वो पब्लिश होने के लिए अभी नजदीक है, समझ लीजिए। काफी सारा, मतलब मैंने 2 बार 3 बार उसको ये किया है, रिवाइज किया है, अंदर का जो लैंग्वेज है रिफाइंड किया है, काफी रिफाइंड किया है। तो ये तो टोटली अनएक्सपेक्टेड था, मतलब मैं कभी बुक लिखूंगा ये तो कभी भी नहीं सोचा था, ऑथर नहीं कभी भी नहीं। You know, और ये ऑथर का बिजनेस के साथ कुछ कनेक्शन है ये भी नहीं सोचा। तो जब देव सर ने बताया कि आपको इम्पैक्ट भी क्रिएट करना है, आपके पास कुछ ऐसा है वो देना है लोगों को, तो मेरे पास रियली में बाकी कुछ चीज का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, और इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस में तो मैं ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं था, कैसे सिर्फ
पैसे के लिए वो काम किया मैंने। Correct. तो ये देने की जैसी चीज कौन सी है, तो मेरे पास पेरेंटिंग का जो एक्सपीरियंस है 30 इयर्स का, वो काफी यूनिक एक्सपीरियंस है। मतलब अभी ये पहले भी जो हमने बात की थी ना, जो गुरु आपका सामने तभी होते जब आप रेडी होते। तो बिफोर मैरिज मेरे लाइफ में एक स्पिरिचुअल गुरु आए, तो उन्होंने समझा कि मैरिज किस लिए है। वहां से शुरू हुआ मेरा पेरेंटिंग का जर्नी। बिफोर मैरिज, मैरिज किस लिए करना है, और मैरिज करने के बाद में अगर बच्चे पैदा करना है तो वो किस लिए करना है। ये सब स्पिरिचुअल जो इनपुट्स है मुझे शादी के पहले से मिल गए। Wow, this is तो इसके लिए interesting. मेरा जर्नी जो है ना, शादी का जर्नी जो है मेरा बहुत यूनिक हो गया। Wow. बच्चे क्यों पैदा करने हैं, उधर से शुरू हो गया। शादी क्यों करनी है, वो उसका आंसर लेने से शुरू हो गया। तो ये 30 इयर्स का पूरा जर्नी रियली वर्थ शेयरिंग है, लेकिन कभी बुक लिखूंगा वो नहीं सोचा था। तो क्या नाम है आपकी बुक का? 7 सीक्रेट्स ऑफ ग्रेटफुल पेरेंटिंग, क्या बात है, दिस ऐसा इज नाम है। हाँ, ऐसा नाम है। और उसमें सेंट्रल थीम जो है वो ग्रेटिट्यूड है, और दैट इज मेनली फॉर इम्पैक्टिंग द पेरेंट्स। वाओ, आई थिंक दैट तो वुड बी सच अ पेरेंट्स के ग्रेट अंदर जो लेगेसी। कुछ पेरेंट के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसका इफेक्ट आपको बच्चों के अंदर दिखेगा। हम हमेशा बच्चों को कुछ चेंज करने जाएंगे, वो ज्यादा इतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा। करेक्ट। तो वो मेरी जर्नी उसमें आई है, और वो बुक फॉर्म में आएगी, तो वो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। ये बड़ा दिस इज बिग, दिस इज ह्यूज, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस इज वेरी बिग, दिस इज वेरी बिग। सो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, वो उसका आंसर मुझे पार्शियली पता है ऑलरेडी, बट फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी। और वो क्वेश्चन है कि कैन यू लाइक डिस्क्राइब हाउ पैशनप्रेन्योर मेंटरशिप इज डिफरेंट और मे बी बेटर देन अदर रिसोर्सेज यू मे हैव ट्राइड। आपने अगर कुछ भी, आपने इतना कुछ चीजें करी हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सो इफ यू हैव फाउंड हाउ डू यू थिंक पैशनप्रेन्योर मेंटरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम अदर थिंग्स दैट यू नो ऑफ? वो सबसे शॉर्ट में मैं बता सकता हूँ कि पैशनप्रेन्योर में, मतलब मैंने तो बिजनेस के लिए ऐसा कोई कुछ ज्यादा ट्राई नहीं किया था, क्योंकि मैंने वो माइंड को ही बंद कर दिया था कि बिजनेस करना ही नहीं है। तो बिजनेस करने के लिए 30 इयर्स में मैंने कभी भी कुछ भी ट्राई नहीं किया था। लेकिन जब ये पैशनप्रेन्योर में जो जर्नी थ्रू अभी 1 साल तो हो गया, उसमें जब 1 साल के जर्नी में जब देखता हूँ, तो जो लोग पैशनप्रेन्योर में समझो जैसे आपके जैसे है, आप है समझो कुछ, तो आप कुछ भी जो बताते, तो आपका बिजनेस अराउंड पैशन, इसका जो जर्नी है उसके एक्सपीरियंस के थ्रू आप बताते हैं। एज ए मेंटर आप जो भी बताते, तो आपका जर्नी उसके अंदर से हुआ है, और उसके बेसिस के ऊपर बताते। आप कुछ वो MBA कॉलेज में बताते, ऐसा वाला नई चीज बताते। करेक्ट। तो मतलब थियरी, हाँ, प्रैक्टिस किया हुआ और प्रूवन फॉर्मूला जो आपने रिजल्ट पाए हैं, तो वो फॉर्मूला जो आप बताते हैं ना, वो मुझे काफी यूनिक लगा। क्योंकि काफी मतलब मेरे जो स्पिरिचुअल कम्युनिटीज है, उनमें भी देखा तो सब लोग उसी तरह के स्ट्रगल कर रहे हैं। तो बिजनेस नहीं बना पा रहे कुछ भी, तो क्योंकि उन्होंने खुद भी बिजनेस बनाया नहीं है, तो उनके साथ बात करने से वो इनपुट मिलता नहीं है। फिर काफी सारे मनी से रिलेटेड ब्लॉकेजेस है, पैसा लेना या नहीं लेना, इधर से भी काफी सारा आर्गुमेंट्स चालू रहता है। अरे हाई तो टिकट काफी क्यों सारे करना है, हाई टिकट क्यों करना है, तो ये सारे जो चीजें बोले, इसमें पैशनप्रेन्योर में आने के बाद में स्लोली वो जो मनी रिलेटेड जो ब्लॉकेजेस थे या थिंकिंग बिलीफ जो थे, तो वो थोड़ी ब्रेक हो रही है मेरी। वेरी नाइस। तो ये जो मतलब जिन्होंने पैशन के साथ बनाने की जर्नी की है, वो लोग सिखाते हैं इधर पैशनप्रेन्योर में। ये मुझे काफी सारा मतलब एक यूनिक लगा, एक अलग से लगा, सिर्फ थ्योरी नहीं बताते हैं। Beautiful. So this is definitely something that you found, that of course, you know, we are different in the marketplace, of course. And, you know, I resonate with what you say. Of course, my journey also has been similar, where I found I have also done so many programs. I have also done so many, you know, courses throughout before coming to Passionpreneur. And when I found Passionpreneur, I found that this is a place where it is like holistic transformation. It's not just business, but it is not just personal, but it's actually a combination which has made me who I am today. And it is helping me grow in all
like all areas of my life. All I areas. can say this holistic transformation is Yes, what yes. I have found, and I'm sure you also resonate with me. Yes, 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 yes. होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इज रियली करेक्ट वर्ड है इसके लिए, जो अभी भी जो गोवा में हम लोग जो गए थे पैशन ब्रेक थ्रू इसमें Right. रिट्रीट में, तो उसमें भी जो कुछ जो बातें बताई, तो मैं ऑलरेडी हीलिंग के जर्नी में हूँ, Hmm. हीलिंग दूसरों को भी मैं देता हूँ, बावजूद उसके देव सर ने जो जो चीज बताई ना, उसमें से मेरा काफी हीलिंग हो गया। तो ये हीलिंग होने से आई हैव चेंज एज ए बीइंग ना, मतलब Yes. मेरे अंदर एज ए इंसान के रूप में मैं एक नया रूप ले पाया हूँ। ले पाए हैं, I have राइट। become डॉक्टर को भी another डॉक्टर की जरूरत human. होती है, हाँ, जरूरत होती है। हीलर को भी तो वो हीलर चीज की मिले, जरूरत होती हीलर की है। जरूरत होती है। तो ये जो इसको बोल सकते हैं कि होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब सिर्फ पैसे कैसे कमाने का उतना समझा के नहीं चलेगा, उसका अंदर से कुछ चेंज होगा तभी वो पैसा भी आएगा। करेक्ट, क्योंकि वही बीइंग तो आपका बिजनेस में जा रहा है, वही बीइंग आपका बिजनेस पर्सनल जा लाइफ रहा में है, जा रहा है। हाँ, तो जब हाँ, इस पे काम करेंगे तो सब चीजें अपने आप ऑटोमेटिक यस, है यस, ना। यस, So, यस, यस, thank you for यस, like यस, यस। और resonating. दूसरा एक चीज हुआ जो अनएक्सपेक्टेड भी बोल सकते हैं, जो कि ये जो देव सर का बार बार जो कहना है ना कि आपको अंदर से खुद आप चेंज करो। करेक्ट। तो 23 के लास्ट में मैंने डिसाइड किया, टाटा मुंबई मैराथन एक हो रहे थे, तो उसमें पार्टिसिपेट कर लिया मैंने। पहले तो ऐसे ही डाल दिया जोश में, वापस मेरे वाइफ मुझे बोलते हैं आप क्या कर रहे हैं, आप मैराथन में जा रहे हैं, आपका एज देखो, आपका एज 58 हो गया है। आपने मैराथन में डाल दिया है। मैं बोला हाँ, मैंने उस कैटेगरी में डाला है जिसमें वो कंपटीशन नहीं है और टाइम का लिमिट नहीं है। मतलब यू रन फॉर 3 आवर्स 4 आवर्स 5 आवर्स 6 आवर्स 7 आवर्स अप टू 12 आवर्स उन्होंने वो दिया था कैटेगरी, यू कैन रन कंप्लीट दिस 42 किलोमीटर अप टू 12 आवर्स। तो मैंने उस कैटेगरी में नाम डाल दिया और शुरू किया प्रैक्टिस। तो काफी डिफिकल्ट होने लगा। फिर मैं बोला नहीं, अभी नाम डाला, अभी छोड़ेंगे नहीं, अब तो करूंगा ही। हाँ। अब तो करूंगा ही। ऐसे करके फिर वो किया मैंने, और आई अचीव्ड आई थिंक 6 आवर्स में मैंने कंप्लीट किया 42.2 किलोमीटर। 42 तो किलोमीटर। ये मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था। मतलब मेरा बॉडी का फिटनेस इतना भी अभी है, क्योंकि वो हीलर के लिए बॉडी फिटनेस इज ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट। Yes. लेकिन वो सिर्फ सुनते थे और लोगों को बोलते थे कि अरे बॉडी फिटनेस करना चाहिए, बॉडी फिट। खुद के ऊपर कभी नहीं किया था मैंने। तो वो मैराथन के अंदर नाम डाल दिया और वो वर्क किया खुद के ऊपर। और आपको अपनी पावर भी रियलाइज हुई कि एज इज जस्ट अ नंबर। वो भी एक बिलीफ था जो, जैसे वाइफ को एक कंसर्न था कि अरे भाई आपकी तबीयत ठीक नहीं है या व्हाटएवर, यू आर गेटिंग लाइक क्लोजर टू 60 नाउ, हाउ आर यू रनिंग गोइंग टू रन, बट दैट इज जस्ट अ नंबर एंड यू रैन माइंड ओवर बॉडी, राइट? सो यू हैव दैट करेज। सो उनका एक ही ये था कि नॉन स्टॉप 42 किलोमीटर चलना है या भागना है, वो स्टॉप नहीं करना है आपको। दैट वाज द ओनली कंडीशन। यू कंप्लीट इट इन 10 आवर्स 6 आवर्स। तो आई कंप्लीटेड इट इन 6 आवर्स। बहुत स्लो करके, मतलब स्टेमिना बहुत बढ़ाया उसमें मैंने। वो वर्क किया, न्यूट्रिशन के ऊपर वर्क किया, फिर हमारी जो हीलिंग मेथड है उसको यूज किया, सब पूरे ऑर्गन्स को ये किया। मतलब एक तरीके से पूरा बॉडी को मैंने एक नए लेवल के ऊपर लेने की कोशिश किया, तभी जाके वो कंप्लीट हुआ। रीजनरेट किया, जनवरी में किया ये कंप्लीट। तो ये भी एक सरप्राइज था, जैसे एक बुक था ना वैसे ये भी एक सरप्राइज था। बुक के जैसे ये भी सरप्राइज। ये पैशनप्रेन्योर में नहीं आता तो ये सोचना नहीं होता था। वो सिर्फ वही होता था कि अरे अभी तो रिटायरमेंट हो गए, तो अभी क्या करना है, छोड़ो ये सब बातों को। हाँ। तो इसी से रिलेटेड मेरा अगला सवाल है आपके लिए। तो वैसे तो मुझे इसका आंसर बहुत क्लियरली पता है, बट फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, वुड यू रेकमेंड पैशनप्रेन्योर मेंटरशिप टू अदर्स? If yes, then what would you say to them? Why should they join पैशनप्रेन्योर मेंटरशिप? पैशनप्रेन्योर मेंटरशिप तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा सभी को। जो लोग अपना बिजनेस जो है वो पैशन के अराउंड अगर क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो पैशनप्रेन्योर मेंटरशिप जो है ना, ये ऐसा एक सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम है कि वो होलिस्टिक है। मतलब नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट बिजनेस, बट इज टॉकिंग अबाउट योर लाइफ चेंजिंग, योर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, एंड देन
it will attract your proper business also. Correct. तो मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स में क्या होता है, सिर्फ बिजनेस के बारे में सिखाया जाएगा और आपका लाइफ अगर चेंज नहीं हुआ है तो बिजनेस का बिगिनिंग होने के बाद में आप उधर ही रुक जाएंगे या फिर फॉल हो जाएंगे, मतलब गिर जाएंगे। ट्रू, तो सैचुरेशन आ इसमें पैशन जाएगा। ट्रेनर में हाँ सैचुरेशन आएगा या तो फिर गिर जाएंगे, मतलब परत वापस बैठ जाएंगे। तो Correct. इसमें आपको खुद को एक चेंज होने का सिस्टम भी बताया जाएगा या दिया जाएगा, तभी जाके आप उसमें जाए। तो इसलिए ये पैशन ट्रेनर का मेंटरशिप डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि Awesome. ये इसको बिगेस्ट एसेट बोल सकते हैं हम। I think ये रियली एसेट है। that definitely can be the underlined word. I can totally, Yes, totally resonate with you that it is Yes. actually an asset. It is adding so much of Yes, value in our life, and it Yes, yes, tells yes. us to move with great courage, with great power, becoming unstoppable in all areas of life, whether it is Yes, money, whether it is business, whether it is relationship, Health, so all health, those areas health also, definitely it has रिलेशनशिप helped. एंड हेल्थ। Beautiful, beautiful. मेरे लाइफ में तो पैशन ट्रेनर जर्नी में हेल्थ और रिलेशनशिप, ये दो चीजों में मैंने सबसे ज्यादा गेन किया। मॉनिटरी में देखेंगे तो इतना ज्यादा गेन नहीं किया मैंने। तो लेकिन मतलब मेरा मंथली सैलरी इंजीनियरिंग में जितना था उतना कुछ भी इनकम नहीं है समझ लीजिए इसमें, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन मेरा रिलेशनशिप और हेल्थ में जो चेंज आ गया ना, दैट इज वेरी बिग चेंज, वेरी बिग चेंज, Got it. वेरी Awesome. बिग चेंज। Beautiful. So what is your next goal and how does it align with, like whatever that you have learned in the Passionpreneur? So what would you like to declare? एक तो आपकी बुक आ ही रही है, बहुत जल्दी ही मार्केट में। तो उसके अलावा क्या आपका एक नेक्स्ट बड़ा गोल है जो आप शेयर करना चाहेंगे, डिक्लेयर करना चाहेंगे? नेक्स्ट बड़ा गोल अभी इमीडिएटली तो 1 लाख स्टूडेंट्स तक पहुंचना है, मतलब पेरेंट्स तक पहुंचना है। ये सबसे बड़ा इमीडिएट गोल है मेरा। Okay. नेक्स्ट गोल है जो पैशन ट्रेनर के जो भी सिखाया अभी तक उसके साथ ये अलाइन होता है, क्योंकि अभी तक मैंने काफी सारा खुद के ऊपर ही वर्क किया है। तो ये जो खुद के ऊपर किया हुआ जो वर्क है वो अभी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होते जाएगा, वैसे वैसे इम्पैक्ट बढ़ते जाएगा। तो ये इम्पैक्ट बढ़ाना है मुझे मेरा, ये 1 लाख स्टूडेंट्स तक पहुंचना है। इसके लिए अभी ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स के साथ मुलाकातें करनी है, मतलब मिलना है और स्कूल्स में जाके भी मिलना है, क्योंकि कुछ चीजें है ये पैशन ट्रेनर जर्नी में जो तो काफी सारी चीजें जो मैं फ्री में दे सकता हूँ और देना चाहता हूँ, वो फ्री में देने वाली चीजें मैं जाके स्कूल में बांटूंगा। तो स्कूल में जब भी मैं दूंगा तो वो काफी सारे पेरेंट्स के पास वो पहुंचेंगी। ऐसे भी मैं पेरेंट्स के पास पहुंचने के लिए अभी गोल रखा है। इस ईयर का जो गोल है, अभी एकेडमिक ईयर चालू हो जाएगा अभी इस मंथ 2 मंथ से, तो एकेडमिक ईयर में स्कूल्स के साथ ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट करने और उसके थ्रू 1 लाख स्टूडेंट्स तक पहुंचना है। ब्यूटीफुल, अमेजिंग। वी विश यू गुड लक, Krishna, for this amazing, beautiful goal that you have of leaving a legacy, and helping so many people live a great life. It's not just like one set of students that you are touching, but actually you are transforming the families through that, right? So it is not one person getting impacted, but entire family getting transformed just because of what you are going to provide them through your services, through your intention, through, all that serving that you want to do. And from our side, we really wish you a good luck. And of course, we would want you to, make millions also while you impact million of people. We would want you also to make millions and like really go forward in this mission and do well for yourself and make your mentors proud, make your family proud. So wishing you good luck, all the very best. Is there something else that you want to say before I complete this talk? Thank you. Yeah. Thank you for very your much. thank you for your compassion work. Thank you for being here and sharing your beautiful journey with us, with our audience. Totally dil se. Thank you. Thank you.